Good morning, my name is Supriya Kumari. Now let's learn Science, Force, Work and Energy Part 3. We are going to learn now the Part 3 of Force, Work and Energy question and answers. In this, we are learning to take the correct answer. Which of the following forces cause wear and tear of machine parts? Machine parts, see, that the answer is frictional force. Why? See, which of the following forces causes wear and tear of machine parts? See, that is frictional force. Because why it is frictional force? Because see, when the two surfaces rub, it causes friction. Like that only. See, if we throw anything in a very rough surface, means that is friction. When the friction caused between the anything that we throw, then that will be teared. Okay, like one paper you take in a sharp something. Okay, that should be sharp. In that, if you did the paper, it will be teared. Like that only, because of the frictional force, the machine parts causes tear, wear and tear. What is gravitational force here? Gravitational force means the earths have gravitational force. Muscular force means the force that is because of our muscles that we extract by our muscle is called muscular force. Magnetic force, magnets. Okay, that's called magnetic force. मतलब which of the following, कौन सा following force है जो wear and tear मतलब फाड़ता है मशीन पार्ट्स को? जैसे कि वो है फ्रिक्शनल फोर्स. आंसर फ्रिक्शनल फोर्स है. कैसे, क्यों वो फ्रिक्शनल फोर्स है? क्यों के लिए? जैसे कि एक पेपर लेके कोई शार्प सरफेस होता है, शार्प सरफेस पे अगर घिसेंगे तो फट जाएगा. ऐसा ही जब टू सरफेसेस मतलब दो चीज रब होते हैं तो वो फटते हैं. ठीक है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स. नेक्स्ट, which of the following statements about work is correct? Which is the following about the work is correct? Work is done when force is applied. Okay, then work is done only when an object is displaced. Next, work is not related to the amount of force applied. Work is not related to energy. So the correct answer of this is, you can see, that is, the work is done only when an object is displaced. See, when the object is displayed in some place, then the work is done. Okay. मतलब कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है वो वर्क है ना वो सही है. इसमें देखते वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड. हाँ, जब फोर्स अप्लाई होता है तो वर्क होता है, पर उससे पहले द वर्क इज डन ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्ले. जो ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले होना है, डिस्प्लेस्ड होना है, अगर वो डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वर्क भी नहीं होगा. तो करेक्ट आंसर है ये. वर्क इज नॉट रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड. हाँ, वर्क रिलेटेड है फोर्स अप्लाइड. जब फोर्स अप्लाइड होता है तो ही ना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है. अब यहाँ पर वर्क इज नॉट रिलेटेड टू एनर्जी. Yes, it's related. First we want energy to apply force, then the work is done. Okay. So next, third one. Let's see the third one what it is.
The third one, now let's see. Which of the following is about incorrect? Wait. Which of the following is about, see, which of the following is about the, see, which of the following that is about this, what will that, which of the following statements, which of the following statements is incorrect? Like this it is. Sorry, I have written about here. Okay, which of the following statements is incorrect? Now let's see which is incorrect. See, that is, you can see, force is a push or pull. Okay, next, force can change the direction of a moving object. Force can change the shape of an object. Force cannot stop a moving object. So the correct answer is D1, because you can only see the force cannot stop moving object. If a ball is coming, if we kick it, okay, the kicking is pushing. Okay, pushing is the force. That when we put force, we can stop the moving objects. Okay, so this is the incorrect statement. Next, fourth one. So, ये क्या है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फोर्स इज अ पुश और पुल. हाँ, फोर्स मतलब पुश नहीं तो खींचना. पुश मतलब पुश करना, ठीक है, और फिर खींचना. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट का ना. जैसे कि अगर वो ये पट्टी से आ रहा है, उसे से ऐसे ये पट्टी भी कर सकते हैं, ऐसे. नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आराम से जब एक कैन रहेगा, उसको ऐसे प्रेस करेंगे तो शेप चेंज होगा ना. नेक्स्ट, फोर्स कैन नॉट स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. क्यों? कोई सा भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं अगर फोर्स अप्लाई हुआ तो. So the D1 is incorrect statement. Next, which of the following forces pulls down a ball that is thrown upwards? मतलब कौन सा फोर्स है जो अगर कोई चीज भी ऊपर फेंका, मतलब यहाँ पर एक बॉल ऊपर की तरफ फेंका है तो नीचे आ गया, ऐसा कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स नहीं. फ्रिक्शनल फोर्स मतलब two surfaces that rub against each other. Okay, no, this is not here. Gravity, muscular force. Muscular force मतलब muscular force is exerted by our muscles. Okay, फिर none of this. No, gravitational force. Yes. The earth have gravity, because of that any object that is thrown upwards come down. मतलब कौन सा फोर्स पुल्स मतलब खींचता है एक बॉल जो ऊपर हम लोग ने फेंका. ओके, तो वो फ्रिक्शन फोर्स से नहीं. फ्रिक्शनल फोर्स मतलब दो सरफेस होते हैं, वो रब करते हैं. मस्कुलर फोर्स नहीं, वो हमारे अगर हम लोग जैसे लिफ्टिंग बुक्स. ओके, सो द लिफ्टिंग बुक्स इज the lifting book means we are lifting the book. That is because of our muscular force, means that is exerted by our muscles. मतलब बुक को उठा रहे हैं, ठीक है, तो वो बिकॉज वो मस्क्यूलर फोर्स है, इसीलिए वो हमारे मसल्स
अगर हमारे पास मसल्स नहीं तो उसे उठा नहीं सकते, वो उठता है। तो ये कैसे ऐसा फोर्स होगा जो बॉल को ऊपर फेंका है तो कैसे नीचे आएगा, इसकी वजह से नहीं, नॉन ऑफ दिस। उससे पहले यहाँ देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स सही है, क्योंकि लिए अर्थ के पास एक ग्रेविटी है। उस ग्रेविटी से कोई चीज भी जैसे ऊपर फेंके तो नीचे आता है। वो कैसे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। तो ये सब था, टिक द करेक्ट आंसर यहाँ फिनिश्ड हुआ। ये पूरा टिक द करेक्ट आंसर है। इसमें आंसर ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें फोर्स कैन नॉट स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ फोर्स इज डन ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड। यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स। Now let's learn fill in the blanks. First one, dash is required to perform work. Energy is the main to perform work. Okay, energy is the main to perform work. Dash हमें परफॉर्म वर्क के लिए चाहिए, पर वर्क को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। पहले एनर्जी मिलेगा तो ही हम लोग फोर्स को अप्लाई और वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, द टू एंड्स ऑफ अ मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स। द टू एंड्स ऑफ एन मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स। ठीक है, मतलब दो एंड जो होता है पोल्स का, मैग्नेट का, ये देखिए ऐसे मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट है, और ये जो एंड है, ये सब एंड, ये पर्टिकुलर एंड, उसे बोलते हैं पोल्स। The two ends of a magnet are called poles. Okay. Next, ball rolling on the floor stop after something due to dash force. Frictional. Or if you can't see here, I'll write here. Frictional. Okay. फ्रिक्शनल फोर्स मतलब एक बॉल रोल कर रहा है, एक बॉल रोल कर रहा है फ्लोर पे, जमीन पे, वो स्टॉप कैसे क्यों होता है? पर स्टॉप वो कैसे होता है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है। ओके, इसी के लिए। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब डैश ऑन द स्टेज, क्लाइंब अप ऑन द स्टेज, मतलब वो डिफिकल्ट है हम लोग को क्लाइंब डैश स्टेज में। स्टेज मतलब हमको पता है सीढ़ियाँ। ओके, वो बहुत हार्ड है क्या क्लाइंब डैश सीढ़ियों को करने के लिए, क्लाइंब अप ऑन द स्टेज, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं ना, वो डिफिकल्ट है, हार्ड है। Next here, true or false? Let's in true or false. Force cannot change the direction of a moving object. False. Force can change the direction. False. Now you should correct the statement. Force cannot change, say no. Force can change the direction of an object. When a body is displaced by force, work is said to be done. What is answer of this? See, the answer of this is true. Yeah, when a body is displaced by force, okay, work is said to be done.
muscular force is exerted by our muscles. Yeah, I told you, true. Now, same pole of magnet attract each other. No. See here, north, it's here also. North, south, north, south, north, south attracts. But here they have given same pole, means these are the pole, no? See, the south and north pole attracts, not the same pole. Okay. And the south north see, and the south north and south repulsion. Okay, we only want attraction now. Okay, so north south attraction, so this is false. So here underline the same and write opposite. मतलब force cannot change the direction of a moving object. ये क्या है, मतलब force ना एक डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है क्या एक मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब चलता हुआ ऑब्जेक्ट का. ओके, तो कर सकता है, ठीक है. तो यहाँ पर फॉल्स है और यहाँ पर कैनॉट को अंडरलाइन करके कैन लिखना है, मतलब कर सकता है. When a body is displaced by force, work is said to be done. मतलब जैसे हम लोग चले और यहाँ पर खड़े हो गए, ठीक है. जब हम खड़े हुए तो क्या हुआ, वर्क हो गया, ठीक है, वर्क हो गया. जब मैं खड़ी हुई इधर तो वर्क हो गया, तो इसका आंसर है ट्रू. मस्क्यूलर फोर्स इज एक्सर्टेड बाय मसल्स, मतलब मस्क्यूलर फोर्स मतलब लिफ्टिंग. मस्क्यूलर फोर्स मतलब जैसे कि बुक्स को उठाना, भारी बुक्स को, वो मस्क्यूलर फोर्स से, वो हमारे मसल से एक्सर्ट होता है. मसल से हम लोग, जब हमें मसल्स रहता है उस मसल से उसे उठाते, उसे बोलता है मस्क्यूलर फोर्स. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मसल, यहाँ पर भी आएगा मसल. ओके, यहाँ पर तो ये ट्रू है. सेम पोल ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब सेम पोल, मतलब पोल मतलब समझाया, जो लास्ट एंड का रहता है, ये सब लास्ट एंड जो रहता है वो पोल्स बोलते हैं. तो यहाँ पर दिखाया है, बोला है कि सेम पोल्स रहते हैं, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ होगा, साउथ साउथ होगा, वो सेम पोल्स रहते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं. क्या मतलब, वो चिपकते हैं, ठीक है. तो ये गलत है. ऑपोजिट पोल्स मतलब नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ, ये दोनों सेम है क्या, नहीं ना. साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट होते मीन्स वो चिपकते हैं, ठीक है. सो ऑपोजिट पोल ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर. ऑपोजिट पोल मैग्नेट का अट्रैक्ट होता है, मतलब चिपकता है. तो ये फॉल्स हुआ. सो ये सब था, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. Now let's learn give reason for the following statements. Okay, there are grooves in the tires. Why? To increase the friction between them and to roll. Second one, whenever we throw something up in the air, it falls down. It is due to gravitational force. Okay. अभी मैं इसे हिंदी में बोल जाती हूँ. There are grooves in the tires. क्यों grooves है? Grooves मतलब जो लाइन्स रहते हैं ना, उसे बोलते हैं grooves. ऐसे देखिए, ये है टायर. टायर में जो जो ग्रूव्स कैसे कैसे रहते हैं, ओके, ग्रूव्स रहते हैं, ठीक है. आप ऑब्जर्व करिएगा, ग्रूव्स रहते हैं, तो उसे बोलते हैं ग्रूव्स, ठीक है.
ग्रुप्स क्यों रहते हैं ये पूछ रहे, क्योंकि लिए इंक्रीज द फ्रिक्शन, मतलब वो फ्रिक्शन को ज्यादा करता है और वो घूमता है, उसके वजह से ही वो घूमता है तो गाड़ी भी चलता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वन, whenever we throw something up in the air it falls down on the earth, मतलब कोई सा भी चीज जब हम ऊपर आसमान की तरफ फेंकते हैं तो नीचे क्यों आता है, क्यों पता है, ये क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। Now let's learn. Answer the following questions in 1 or 2 sentences. What are different effects of force? Now the question is, what are the different effects of force? You can guess. See, what's effects? See, effects means something. Means what are the things that we can do? Okay. From force, that's called effect. First, force can move a stationary object. Force can move a stationary object, मतलब force move कर सकता है stationary object, ठीक है, stationary, okay, stationary object. Force can move a stationary object. Force ना बहुत सारे objects को move कर सकता है, ठीक है, पहला। Second one, force can stop a moving object. अगर force ना एक moving object को भी stop कर सकता है. Force can stop a moving object. Next one. Next is, it can change the direction of a moving object. It can also change some directions of a moving object. Means you think a ball is coming from east, we can while applying force we can do it into west. Okay, मतलब ये ना हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कोई सा बॉल ईस्ट से आ रहा है तो उसे हम लोग वेस्ट की तरफ फोर्स अप्लाई करके उस तरफ कर सकते, ठीक है। और नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट वन इज, it can change the speed of a moving object. It can even change a speed of a moving object. मतलब पूरा स्पीड से आ रहा है कोई चीज भी, अगर हम लोग जैसे कि बाइक स्पीड से आ रहा है, जब हम ब्रेक लगाएंगे फोर्स देके तो वो स्टॉप हो सकता है, यही है। जैसे कि ये एग्जाम्पल था, तो ऐसे इसे बोलते हैं इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई सा मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब वो कोई सा भी शेप ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, so this was the effects of force. ये सब effects था force का। Next, how are force, work and energy related to each other? ये means, so see, we need energy first to apply force. When we apply force, then the work is done. Force, work and energy, force, work. मतलब कैसे फोर्स, वर्क और एनर्जी एक ही है, ठीक है। कैसे मतलब, वो देखिए, पहले हम लोग को एनर्जी चाहिए फोर्स अप्लाई करने के लिए, और फिर जब फोर्स अप्लाई होगा तो वर्क भी हो जाएगा, तो यहाँ ही हो गया एनर्जी, फिर एनर्जी हुआ, फोर्स हुआ, वर्क हुआ, ठीक है। ऐसे वो रिलेटेड है, मतलब सब सेम है। Give an example where frictions help us in our daily life. Give एक एग्जाम्पल जैसे फ्रिक्शन हमारे डेली लाइफ में काम आते। ओके, सो द आंसर इज, सी, द फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक ऑन द रोड विदाउट स्लिपिंग और फॉलिंग। मतलब फ्रिक्शन हम लोग को हेल्प करता है रोड पे वॉक करने के लिए, वो हेल्प करता है, ठीक है।
So एक example है, that was a one example that the friction help us to walk on the road without slipping or falling. मतलब फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है वॉक करने के लिए, मतलब चलने के लिए, चलते हुए जब देखिए चलने के लिए रोड पे बिना फिसले हुए या फिर गिरे हुए, ठीक है। फ्रिक्शन ऐसे हेल्प करता है हमारे डेली लाइफ में। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स, ओके, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स is the force by which earth pulls all of the objects toward itself is called gravitational force. मतलब the earth, हमारा अर्थ जो सारा ऑब्जेक्ट्स को पुल करता है, पुल मतलब खींचता है, ठीक है, अपने तरफ, ओके, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट, give two examples where force is applied and work is done. मतलब एक ऐसा दो एग्जाम्पल्स जिसमें फोर्स अप्लाई होता है तो वर्क डन है, वर्क इज डन, तो वर्क इज डन है, मतलब काम हो गया है। फर्स्ट, एक सिंपल एग्जाम्पल, फ्लाइंग, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। जब वो फ्लाई करते हैं और फिर जाके बैठते हैं इधर वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक प्लेस से लेके अदर दूसरा प्लेस जब जाते हैं तो वर्क सही होता है, वर्क इज डन, मतलब वर्क हो जाता है। वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ये है पुशिंग अ ट्रॉली। जब हम लोग ट्रॉली को पुश करते हैं और फिर जाके वो स्टॉप होता है, तो ये भी एक एग्जाम्पल ऑफ फोर्स इज अप्लाइड एंड वर्क इज डन, मतलब फोर्स अप्लाई होता है और वर्क भी हो जाता है। सो ये सब था, आंसर द फॉलोइंग, गिव रीजंस, बी फिनिश्ड। ग्रूव्स, आप ऑब्जर्व करिएगा फिर टायर्स में ग्रूव्स रहते हैं, ठीक है, वो फ्रिक्शन कॉज करते हैं, मतलब वो फ्रिक्शन को बनाते हैं, ठीक है, जिससे वो रोल होता है, ठीक है, वो रोल होता है, इसकी वजह से सो गाड़ी चलती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।